All right, folks. I'm extremely apologizing that I was not able to interact with you, even if I have requested you and you people have given me the time on this day, on 23rd March, the Pakistan Day. There was electricity issue. Once it's disrupted, it destroys the entire session. All right. We'll be starting the second functional element of solid waste management system in terms of storage. We have discussed the introduction of storage in previous session. So we would be moving forward with the existing situation. I was discussing regarding the management of storage facilities at different points in the city. If we not provide or allocate the proper storage facilities in our towns and facilities, we would be requiring more resources, much more efforts in terms of solid waste collection and transportation. And even there would be a lot of time requirement as well in terms of solid waste management collection due to the absence of a proper storage facility. So it is a complete section, it is a complete department in a solid waste management system, which offers, which procures, which designs, which selects the sites, which provides the containers at different sites, and then which think about the 10,000 containers in a city, 8,000 containers in a city regarding the waste collection systems, and then the management of those containers in terms of their security. Those can be theft out as well. People can snatch those containers from the system, and then they can later on they can sell that container to the scrap owners. So it is upon the systematic approach of the department which is offering these services in terms of storage facilities, that which type of material they are selecting to provide the containers. And even if you are looking at the at those things, like if you are making your solid waste management system a mechanized system, then you have to put metallic containers obviously there. And only metallic containers would be successful in terms of long lasting. Otherwise plastic containers are also existing in the market, but those won't be long lasting containers. Those would be broken while being handled by the mechanized vehicles. And if you select the metallic containers can be theft out by the individuals in the town. And if you have put around 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 containers in a city, you have to manage and you have to take care of those containers. And after that, after if they are not like those containers are not theft out, then you have to manage their physical condition as well. You need to keep them aesthetically good looking containers. You need to repair and maintain those containers so that those are uh, very much able to be operated by the mechanized vehicles. So there are a lot of things which can be incorporated in terms of solid waste management systems. Second functional element, which is the storage of solid waste. I don't know why isn't it moving further. I think it's being uploaded.
Is it being shared with you, by the way? Yes, sir. So anyone of you, if anyone of you would like to share the existing situation of storage facilities of in terms of containers in solid waste management system in their towns or their localities. If you have observed these things, you might have observed these things, but you haven't. I believe that you haven't thought of the processes which are required in terms of storage facilities, which I have mentioned earlier in terms of selection of the site, selection of the material, maintenance of the point, maintenance of the containers, collection of the containers, and then providing the relevant storage facility to the relevant community. You might not have thought of those things, and I would like to request you all that if you move around in the city, you must know that you are like observing things in terms of solid waste management systems as well, and along with the waste generation rates at different points, you have to observe the waste storage facilities around the city as well. If any one of you, meanwhile, if any one of you wants to share his or her experiences in their town and in your towns, you can share, please, one by one. Until that, we would be waiting for the uploading of that particular section of the presentation. Okay, sir. As well as I saw in my city, sir, I'm from Chakwal. सर यहाँ पर प्राइमरी स्टोरेज वेस्ट मैनेजमेंट और हैंडलिंग की फैसिलिटीज़ भी हैं और सेकेंडरी की भी हैं, कंटेनर्स भी अवेलेबल हैं और जो है वो उनका मतलब एक पूरा स्टाफ भी है जो चीज़ों को मैनेज करता है। लेकिन आई डोंट नो वाई कि फिर भी हमारे मतलब सिटी में बहुत ज़्यादा जगह जगह पे बड़े बड़े डंप्स हैं सॉलिड वेस्ट के, जहाँ में बहुत ज़्यादा ये रैपर्स और शॉपर्स हैं। लेकिन आल तो मैंने ये भी लोगों को देखा है सुबह सवेरे जब जाते हैं सिटी वगैरह में किसी भी काम के लिए, तो जो है वो स्टाफ और वो अपनी व्हीकल्स के साथ उसको क्लीन करने के लिए, उसको वहाँ से कलेक्ट करने के लिए आते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वहाँ पे फिर भी बहुत ज़्यादा सॉलिड वेस्ट होता है। It is because of the immense generation of waste, and most of the times the surrounding of that point also depict it as the waste collection point. लोग सोचते हैं कि इस जगह से अगर वेस्ट को कलेक्ट किया जा रहा है तो हम भी अपना वेस्ट वहीं पे जाके फेंक आते हैं, क्योंकि हमारे घर के पास से तो कोई उठाने आता नहीं है। तो इट कम्स across when such things in community prevail, and people start throwing their waste at a single point. Similarly, there are different patterns of waste. होता इस तरह से है कि आपकी जो हाउस होल्ड कम्युनिटी है वो वेस्ट किसी और टाइम पे वहाँ पे ड्रॉप करेगी, आपकी जो मार्केट कम्युनिटी है वो किसी और टाइम पे वहाँ पे वेस्ट को ड्रॉप करेगी, आपकी जो other facilities हैं in terms of institutions, hospitals and other related institutions, उनकी टाइमिंग जो है वेस्ट को स्टोर करने की कुछ और होगी। इट डिपेंड्स अपॉन देयर टाइमिंग एज वेल कि वेस्ट जनरेशन रेट जो है वो बेसिकली अपीयर किस वक्त हो रहा है। यू कैन नॉट प्रोवाइड कलेक्शन फैसिलिटी एट ऑल 24 आवर्स। यू हैव टू मैनेज दैट इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी। एक दिन में एक बार, दो बार, तीन बार आप कलेक्ट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और जहां आप बात कर रही हैं वहां तो नॉर्मली आई आई बिलीव कि वहां पे सिर्फ एक दिन में एक बार कलेक्शन पैटर्न होगा। तो एक दिन में एक बार अगर वो कलेक्ट करेंगे तो ऑल दोज कंट्रीब्यूटर्स विच आर सेंडिंग देयर वेस्ट एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स वुड बी अगेन पोल्यूटिंग दैट स्टोरेज पॉइंट। एंड इट सीम्स लाइक कि यहाँ से तो कभी वेस्ट उठाया ही नहीं गया, और इट बिकम्स वेरी tedious for the municipality to collect the waste all the time. यही चीज है जो आप लोगों ने पहले शेयर किया था कि पब्लिक कोऑपरेशन इज अ मस्ट थिंग इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। सो इफ पब्लिक स्टार्ट cooperating with the community provider, then it would be a success case as well. Right, sir. Any other experience?
Do we have Well, any actually, person from? We had a participant from Gilgit Baltistan. What are the observation of that area? Asadullah, who was from Yes, sir. Gilgit? Are you from Gilgit Baltistan? No, sir. Who is from Gilgit Baltistan then? Do we have any candidate from GB or any other hilly area? Abbottabad maybe? यस सर, एबटाबाद से हूँ मैं। जान भाई। So why अच्छा aren't सर, यहाँ you पर जो sharing your experiences? सर यहाँ पर मतलब कि मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की वो ये कि यहाँ पर क्योंकि जो एरियाज हमारे पास हिल की तरफ थोड़े बहुत आते हैं, कि वहाँ पर भी लोकेलिटीज हैं, तो वहाँ पर ये होता है कि डायरेक्ट जो व्हीकल्स होती हैं जो ट्रांसपोर्ट करती हैं गार्बेज वगैरह को, वो वहाँ पर नहीं जा सकती, इसलिए वहाँ पर स्मॉल कंटेनर्स रख दिए जाते हैं, या मोस्टली वहाँ पर कंटेनर्स के लिए भी मतलब कि थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रांग मतलब कि बैकग्राउंड चाहिए होता है, इसलिए वो लोग वहाँ पर ना थोड़ा डंपिंग एरिया सा बना देते हैं खुद से, मतलब कि दीवार के साथ जोड़ कर ना एक कंक्रीट की थोड़ा वॉल बना देते हैं, जिसमें वो लोग आकर वहां पर फेंक देते हैं। इसके अलावा सर व्हील बैरोज वगैरह यूज करते हैं लोग यहाँ पर, जो यहाँ पर स्वीपर्स वगैरह होते हैं वो इस काम के लिए। और जब ये यानी कि सारा जब स्मॉल कंटेनर्स जब फिल हो जाते हैं, तो इसको लार्ज कंटेनर जो हमारे पास होते हैं उनमें जाकर डंप करते हैं, और देन फिर जो लार्ज कंटेनर्स होते हैं वो आगे से जाकर एक एबटाबाद में सलहट के करीब एक लैंडफिल सी बनाई हुई है इन्होंने फिलहाल, डिस्पोजल यूनिट है, तो वहां पर ये उसको जाकर डंप करते हैं, और देन फिर उसको जो है मतलब कि ना लेवल करते हैं उस जगह को डिफरेंट मतलब के टूल्स वगैरह के जरिए। और इसमें मजीद ये कि एक दिन में यहाँ पर जो होता है 2 दफा मतलब कि गलियों की सफाई वगैरह की जाती है, और जो सॉलिड वेस्ट है उसकी कलेक्शन की जाती है, और जो कंटेनर्स हैं वो एटलीस्ट 5 टाइम्स मिनिममली जो है उनको मतलब कि एम्प्टी किया जाता है यहाँ पर। तो सर इस तरह, और लेकिन उससे भी ज़्यादा ये कि 3 यहाँ पर मेन जो है ना ऑर्गेनाइजेशन इस टाइम पे काम करी इसके लिए, वासा है, और इसके अलावा कंटोनमेंट बोर्ड है, और GDA गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो हर किसी मतलब कि हर कोई जो है वो तकरीबन इसी रूल को ही फॉलो कर रहा है। कंटेनर्स और जो वर्कर्स हैं इन्हीं के मतलब के थ्रू सारा काम हो रहा है। फिलहाल यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं किया जाता, ना ही कोई मतलब कि रिसाइकलिंग वगैरह का प्रोसेस किया जाता है सॉलिड वेस्ट के ऊपर, डायरेक्ट कलेक्शन और उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन एंड मतलब कि डंप हो जाता है वो फिर। All right, excellent elaboration and observation of your local vicinity. Last week I was conducting a training as a resource person on solid waste management system at a government department, and it was a complete package of solid waste management system, like whatever you are going to discuss in your entire semester was discussed in that week, and it was for the professional, and many professionals from Abbottabad were also present over there in that training, and it was like having the participants from across the country, starting from Azad Kashmir, Gilgit Baltistan to Sindh and KPK and Punjab as well, from Islamabad as well. So I had an opportunity to interact with the Abbottabad municipality providers as well, and there were also the municipality providers with from Swat, Mingora as well. Yes, Shazre, what do you want to share with us? so actually, I want to share my experience. 2012 में सर आई विजिटेड जापान, तो वहाँ पर जो एक टेक्निक थी जो यूज़ की गई थी सेग्रीगेशन के लिए, तो आई वांट टू शेयर दैट टेक्निक। इट वाज 2012, और पाकिस्तान में जो अल बराक और इस तरह की जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो भी स्टार्ट हुई है बहुत बाद में हुई है। तो उस वक्त ये जो टेक्निक वो लोग यूज़ कर रहे थे वो इस टाइप की थी कि जो आपके प्लास्टिक के जो कंटेनर्स वगैरह होते हैं, लाइक प्लास्टिक की बॉटल्स या इस तरह की चीज़ें, वो लोग एक वीक के बाद उन सब चीज़ों को इकट्ठा लेकर जाते थे, और वो एक जगह पे एक जिस तरह ATM मशीन होती है उस टाइप की एक मशीनरी बनी हुई थी, और वहाँ पर वो लोग उससे डंप आउट करते थे, और उसके वेट के मुताबिक जितने मतलब इतने ग्राम्स की ये प्लास्टिक बॉटल है तो उससे उतने जो है आपको अमाउंट, मतलब कुछ स्पेसिफिक अमाउंट रखी हुई थी, उन आप वो डंप करते तो उतने अमाउंट आपको इन रिटर्न मिल जाते थे।
तो इट वाज अ गुड टेक्निक, लाइक आप दूसरों को भी बेनिफिट दे रहे हो, आप जो सिटीजन है वो भी मतलब थोड़ा सा उसमें जो है मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और इन रिटर्न उसे भी कुछ मिल रहा हो, तो थोड़ा सा मतलब ये अच्छी टेक्निक है। अगर पाकिस्तान में अडॉप्ट कर ली जाए प्रॉपर लेजिस्लेशन के थ्रू तो इट वुड बी बेनिफिशियल कि हम लोगों को ऑन साइट जो हम लोग बाद में मतलब कलेक्शन के बाद जो सेग्रीगेशन करते हैं उससे बेहतर है कि हम लोग पहले ही सेग्रीगेशन का कोई प्रॉपर प्रोसेस बना सकें। It was a wonderful experience, Shadre. Thank you for sharing your observation with us and adding an international flavor in a practical or observation from international perspective. Thank you for that. And yes, it is being practiced in various European countries and even in Germany. If you look at the waste collection system, they also provide such facilities. बेटा ये सारी चीज जो है it is not about to install those machines or those systems to collect the segregated waste. Yes, you have to provide the incentive to the citizens as well, so that they may get attracted towards such cooperation. और उससे भी पहले देखें, once you have collected the segregated material, what would be the fate of that collected waste material? उससे भी पहले हमें रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, हमें रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करना है, हमें लोगों को ये बताना है कि सेग्रीगेटेड मटेरियल इज अ रॉ मटेरियल रादर अ वेस्ट. It is a source and you can use it as a raw material, and it would be benefiting your industrials raw material stream on a very larger scale with minimum input cost. और जब वो इंडस्ट्रियल सेटअप हमारा इस्टेब्लिश हो जाए, स्ट्रेंथन हो जाए, तो फिर आपका जो सेग्रीगेशन का सिस्टम है ना, उसको आप एक्सेलरेट कर सकते हैं. मतलब अगर जापान में, जर्मनी में या इवन मैनी अदर कंट्रीज आर प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज और बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स टू द सिटीजन्स, तो at the back end their recycling industry is mature enough to collect all the waste, to manage all the waste and to recycle all the waste. तो ये एक एस्पेक्ट है इसकी पूरी चेन को कंप्लीट करने का. अ वेरी गुड एग्जांपल, अ वेरी गुड नॉलेज शेयरिंग विद द अदर पार्टिसिपेंट्स. और यस, दिस इज द पॉइंट के लोग जो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट को कलेक्ट करके डंपिंग की तरफ जा रहे हैं, you guys are the main contributors in this system. You have to establish such things and you have to design such things. You have to bring such ideas in our local communities. It's like very easy कि आप इसको इतना ज़्यादा मैकेनाइज ना समझें. अगर हम पूरे मुल्क में हर छोटे छोटे कॉर्नर में जाके ATM मशीन्स अगर इंस्टॉल कर सकते हैं डिफरेंट बैंक्स, तो इसी तरह का कोई स्पॉन्सरशिप लेके हम इस तरह के सिस्टम्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं. एंड बिलीव मी कि अगर आपने ये सिस्टम्स इंस्टॉल करना शुरू कर दिए, आई एम नॉट डिमांडिंग सच इंटेंसिटी एज वी हैव इन ATM मशीन्स. अगर आपने एक सिटी में डिपेंडिंग अपॉन इट्स साइज, अगर आपने डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं वो भी कर दिए, तो इवन वहाँ पे लाइंस लग जाएंगी और लोग जो हैं वो अपना वेस्ट जो है वो वहाँ पे ड्रॉप करने के लिए इवन उनको वेट भी करना पड़ा तो वो करेंगे. And looking at the public cooperation, you would be like encouraged to install such systems on a larger scale. और फिर आपका जो सिस्टम है वो चल पड़ेगा. आपको इनिशियली इसमें कुछ इन्वेस्टर्स चाहिए होंगे, आपको इनिशियली इसमें कुछ फाइनेंसर्स चाहिए होंगे जो आपको इस टर्म्स में फाइनेंस करें कि आपका वेस्ट जो वहाँ से कलेक्ट हो रहा है उसको वो इंडस्ट्रियल लेवल पे जाके बैक एंड पे, एंड इट वुड बी लाइक देयर ओन एडवर्टाइजमेंट एज वेल. अगर बाइकिया एक छोटा सा सिस्टम है, अगर वो आपके यहाँ, मैंने देखा है रावलपिंडी इस्लामाबाद में, दे हैव furnished the passenger stations as well on local systems. और वहाँ पे उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट भी की है और मीनवाइल थोड़ा सा एक्सपेंडिचर करके उसको थोड़ा सा फर्निश भी किया है.
तो इस तरह की फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज हमें इंडस्ट्री से मिल सकती हैं, but the point is के who would be providing such ideas, who would be operating such ideas, who would be maintaining those ideas, who would be connecting those points with the industry. तो ये काम करने के लिए रेलिवेंट क्वालिफिकेशन, रेलिवेंट नॉलेज चाहिए जो एक इन्वायरमेंटल इंजीनियर के पास है. The existing setup, in existing setup, the people who are managing the solid waste are not that much qualified in terms of environmental setup, and even if they are qualified with the environmental degrees, they are not placed at the relevant positions then. All right. And even if they are placed at a very minute or trace quantity of the engineers have been appointed or placed or recruited on those positions, they are not being authorized to work independently. All right. They are like being pressurized from the public setup. They are being pressurized by the politicians. They are being pressurized by the government officials. So it is very difficult for them to think out of the box and implement ideas. It would be taking time in terms of managing and operating such systems, but it is a very good sign that you people have observed such things. You people are thinking of such things. Yes, Bahat and Anwar, what's the सर मेरा ये क्वेश्चन था कि सर जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं कि हम लोग किस तरह मैनेजमेंट कर सकते हैं और हम किस तरह से जो है वो इन कंडीशंस को बेहतर कर सकते हैं सर, लेकिन मतलब ये था कि हम एज इंजीनियर जब यहाँ से पास आउट होंगे तो उसके बाद हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि हमें कोई इस तरह की जॉब मिल जाए जिसमें हमें अच्छा खासा फाइनेंशियल बेनिफिट हो जाए. तो ये जो सारा काम है इस सारे प्रोसेस के लिए यानी कि इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए हम सिर्फ तभी कर सकेंगे जब हमें कोई कंपनी हमें ऑन करेगी. अगर हम खुद से करना चाहें तो फिर तो ये टोटली वॉलंटियर वर्क हो जाएगा और आई डोंट थिंक सो कि कोई उसकी तरफ इतना स्पेसिफिकली जाएगा. तो सर इसके अलावा कोई और नहीं है कि हमें इसके लिए कोई लेजिस्लेशन पास करवाना पड़ेगा तभी ये होगी चीज़? जी बिल्कुल, आपने ये जो बात आपने की है, इट इज़ हाई टाइम कि हम इन चीज़ों को डिस्कस करें इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग. ये वहाँ पे चली जाती है बात कि वी डू हैव अ सर्टिफाइड एंड अ वेरी रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव फॉर्मुलेटेड काउंसिल विच इज़ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल. पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इंडस्ट्रियल सेटअप को भी और सारे इंजीनियर्स के सारे मैटर्स को देख रही है और इसमें काम भी कर रही है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के वो इंजीनियर्स की सैलरी को, मिनिमम सैलरी लेवल को जो है वो फिक्स करे और उसके बाद इंश्योर करे कि सारे इंजीनियर्स को वो सैलरी मिल रही है या नहीं मिल रही, depending upon the economic situation of the country and the amount and the quantity or the number of engineers which are being produced from different sectors of the country. हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो इस वजह से फिर वो जो सैलरी है उसमें थोड़ा सा ये इशू होता है कि वो लोअर सैलरी पे भी कोई ना कोई काम करने के लिए तैयार होता है. एक चीज़, यस यू आर राइट के लोग जब ग्रेजुएट होते हैं तो उनका एक थीम होता है कि हमें जितनी हाई सैलरी वाली जॉब मिले, रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है वो बात की बात है, फाइनेंशियल बेनिफिट की तरफ ज़्यादा हमारा फोकस होता है. एक चीज़. दूसरे नंबर पे अगर हम इन चीज़ों की ये बात तो मैं भी कर रहा था कि जो आपकी रेलेवेंट इंडस्ट्री है वेस्ट मैनेजमेंट में, वो ऐसे लोगों को हायर ही नहीं करती. मतलब सेटअप कुछ और तरह का है, हायरिंग्स जो है, रिक्रूटमेंट्स जो हैं वो किसी और बेसिस पे होती हैं. तो उसमें फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि आप किस तरह से इस सिस्टम में इन्फिल्ट्रेट करेंगे. जब आप उस सिस्टम में एंटर नहीं होते तो आप अपने आइडियाज वॉलंटियर बेसिस पे कैसे प्रोवाइड करेंगे. ऑब्वियसली यू हैव टू अर्न अ लिवलीहुड फॉर योर ओन सेटअप एज वेल एंड यू आर वर्किंग एट सम अदर प्लेस. तो आप उनको किस तरह से फिर बेनिफिट कर सकते हैं वेस्ट मैनेजमेंट वालों को विदाउट एनी इंसेंटिव और विदाउट एनी recognized position. So yes, there are issues in terms of these points और इन इश्यूज के लिए जो पॉलिसी मेकिंग है उसके ऊपर फोकस देना चाहिए हमें. पीईसी को रोल प्ले करना चाहिए कि पीईसी
इंश्योर करे कि हर इंडस्ट्री जिसमें रेलिवेंट इंजीनियर्स की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एनवायरमेंटल इंजीनियर्स ओनली, रेलिवेंट इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है क्या वहाँ पे, उन्होंने वहाँ पे ऐसे लोगों को हायर किया है या नहीं किया, और क्या वो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक नॉर्मल डिप्लोमा करवा के किसी को कम पे करके तो उसको वो इस जगह पे इस पोजीशन पे उन्होंने अपॉइंट किया हुआ है और उससे वो काम चला रहे हैं, जिससे क्वालिटी के ऊपर भी कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो रेलेवेंट क्वालिफाइड पर्सन है उसकी सर्विसेज भी नहीं ले रहे और सिस्टम को अच्छा नहीं कर रहे। तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा अभी इसमें भी काम होने वाला है। जी अनवर। सर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मुतालिक जो सर थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस था भावलपुर एरिया से रिलेटेड सर, वो शेयर करना चाहता हूँ सर। इसमें सर ये है कि भावलपुर में जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि हम जो है ना वेस्ट मैनेजमेंट वाले एक दफ़ा मोस्टली जो है ना वो कलेक्ट करते हैं वेस्ट जो होता है। सर हमारे भावलपुर में सर इस तरह का सिस्टम है कि 2 टाइम्स कलेक्शन होती है सर। अब सर इसके अलावा सर ये भी है कि हर स्ट्रीट के बाहर कोने के ऊपर उन्होंने एक लोहे का जो ड्रम होता है वो भी रखा हुआ है कि लोगों की फैसिलिटी के लिए कि वो उसी के अंदर डालें, ना कि कोई मतलब कि खुद से घरों के बाहर डाल दें। एक सर मैकेनिकल कलेक्शन भी हो रही है और हमारे पास डोर टू डोर कलेक्शन भी हो रही है। इस वजह से सर काफ़ी जो है वो यहाँ पे अगर विज़िट करें तो सर सड़कें बहुत साफ़ और जो है गलियाँ वगैरह बहुत साफ़ होती हैं, इधर गंद वगैरह नहीं होता। लेकिन सर यहाँ पे जो वो कह रहे थे जब मैंने डिस्कशन की थी, तो डोर टू डोर कलेक्शन में सर उनको प्रॉब्लम ये आता है कि कुछ आपको पता है सर घरों में जब मेल्स वगैरह चले जाते हैं तो फिर वो जो है ना कोई होता नहीं है, तो वो जब आते हैं वेस्ट मैनेजमेंट वाले गंद वगैरह लेने तो फिर वो जो है ना उस तरह से कोऑपरेट नहीं करते उनके घर वाले, और मतलब कि मना कर देते कि नहीं जो है ना हम बस खुद फेंक देंगे या इस तरह से। तो उस वजह से सर कुछ जो है ना वो प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट होता है। सेकेंडली सर जो है ना वो यहाँ पे सर कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट के थ्रू जो है ना वो डंप नहीं किया जा रहा, जैसे मुख्तलिफ शहरों में हो रहा है सर। 350 to 370 टन्स पर जो है ना डे सर कलेक्ट होता है यहाँ पे भावलपुर में सर। तो वो सर एक साइट एरिया है सर, वहाँ पे जो है ना उसको विदाउट एनी ट्रीटमेंट जो है वो सर डंप कर दिया जाता है सर। All right, thank you for sharing Anwar. It was very unique example of privacy as well. और इसको हम जो कलेक्शन का सेटअप पढ़ेंगे उसमें भी हम डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली कि किस तरह से प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है ड्यूरिंग द कलेक्शन ऑफ द सॉलिड वेस्ट। तो यस, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर और प्रॉब्लम जो आपने शेयर किया हमारे साथ। और ऐसा ही होता है कि बहुत सारी जगहों पे इस तरह के इश्यूज भी होते हैं, तो वहाँ पे हमें उस प्राइवेसी को मेंटेन रख के सिस्टम को ऐसा बनाना चाहिए कि प्राइवेसी भी डिस्टर्ब ना हो और कलेक्शन भी डिस्टर्ब ना हो। यस शादरे। तो एक्चुअली जो सबाहत एक बात कर रही थी पॉलिसी मेकिंग की, तो सर सबसे पहले जो हमारा जिस तरह का कल्चर है पॉलिटिक्स का, तो उसमें यही होता है कि जब तक कोई एग्जाम्पल हम लोग नहीं दिखाएंगे तो हमारी जो पॉलिसी मेकिंग के लिए जो भी लोग हैं हमारे लीडर्स हैं वो तब तक कोई भी पॉलिसी नहीं बनाएंगे, उस पर डिबेट नहीं करेंगे। तो फॉर दैट वी हैव टू टेक इनिशिएटिव। लाइक हम लोगों को किसी मतलब बहुत सी अभी भी कंपनीज कुछ ऐसी हैं जो कि नए आइडियाज़ को प्रमोट कर रही हैं, तो हमें जो है अच्छे मतलब एक अच्छी कंपनी देखनी है या फिर खुद इनिशिएटिव लेना है अगर कोई इतना स्ट्रॉन्ग है तो, ताकि हम एक छोटे एरिया में एक एग्जाम्पल सेट कर सकें, एक अच्छी वर्किंग दिखा सकें, तभी हमारी पॉलिसी बन सकती है। जैसा हमारा पॉलिटिकल सेटअप है उसके मुताबिक मैं बात कर रही हूँ। थैंक यू शाजरे। बेटा आप दोनों की पॉइंट ऑफ व्यूज जो हैं दोनों के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। आपके पॉइंट को भी मैं फुली सपोर्ट करता हूँ। सबाहत ने भी बिल्कुल ठीक बात की है। डिफरेंस इनमें अब ये जो मुझे समझ आती है, जो आई वुड लाइक टू शेयर माय ओपिनियन एज वेल, कि सबाहत ने जो बात की है दैट वाज फॉर द इंटायर कम्युनिटी। वो सारे इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स के लिए था विच आर बीइंग ग्रेजुएटेड फ्रॉम पाकिस्तान और एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, कि उनको रेलिवेंट पोजीशंस पे विद प्रॉपर इंसेंटिव्स अगर जगह दी जाए तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये उन्होंने उस सिस्टम को या एक जो आपका जॉब मार्केट होती है उसको
शो किया, उसको बताया, वो चीज़ शेयर की है, और वो भी ज़रूरी है। जो आप बात कर रही हैं, इट इज़ मोर लाइक टुवर्ड्स द प्राइवेट सेटअप। आपकी बहुत अच्छी बात है कि अगर आप एग्जाम्पल सेट करें, इनिशिएटिव लें, तो यस वी कैन स्टार्ट टेकिंग इनिशिएटिव्स ऑन स्मॉलर लेवल, कि हम डीएचए को क्यों नहीं अप्रोच करते, हम बहरिया टाउन को अप्रोच क्यों नहीं करते, कि विद स्मॉलर इन्वेस्टमेंट, हम पूरे कराची की बात नहीं करते, हम किसी सर्टन टाउन, किसी कम्युनिटी में देखें, एक हमने जो ये सेटअप है ना, जो जो मैंने सबाहत वाली बात की है, वो फुली उसको भी हम उसके ऊपर भी रिलाय फुल नहीं करना चाहिए, और जो आप अभी हम प्राइवेट सेटअप की बात कर रहे हैं, आप कर रही हैं, उसके ऊपर भी रिलाय नहीं करना चाहिए, बट बल्कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर हमें चलना चाहिए, कि पब्लिक सेक्टर में भी जो फैसिलिटीज हैं लार्जर स्केल पे, वहां पे भी क्वालिफाइड पर्संस हों, एज सबाहत सेट। प्राइवेट सेक्टर में भी जितनी भी आपकी पाकिस्तान में तो आप देखें कितने ज़्यादा टाउन्स एंड सोसाइटीज़ हैं जो डेवलप हो चुकी हैं, तो वो लोग इस सिस्टम को अप्रोच कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, और एक सिमिलर कम्युनिटी होती है उनके पास एक रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं जो वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग्स, तो ऑपरेशन ऑफ द लाइफ के लिए भी वो ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। कोई कोई तो ऐसा इनिशिएटिव ले जो स्टूडेंट हो, मतलब वी शुड नॉट रिलाई ऑन द म्यूनिसिपैलिटी ओनली। एक स्टूडेंट इसको एज ए बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है, कि वो किसी टाउन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और वहाँ से कलेक्शन वो खुद करता है, और उसके ऊपर वो एक मॉडल बना देता है जो कंप्लीट सेट ऑफ रिसाइकलिंग एंड रिकवरी जो है वो एग्जिबिट करता है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान में ये सिस्टम चल रहा है, और इस सिस्टम के ऊपर जो आपके नॉन टेक्निकल लोग हैं, वो आप लोगों को हायर करके ये सिस्टम चला रहे हैं, just because of the references, just because of the context, just because of the investment। हमारे यहाँ सेटअप थोड़ा सा ये होता है ना कि जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं बेटा, जहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ टू इंटरेक्ट विद द कम्युनिटी, टू इंटरेक्ट विद द रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स। कोई सेमिनार होता है, कोई विजिट होता है, कोई भी चीज़ होती है जो इस तरह की एक्टिविटी होती है, तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता स्टूडेंट्स का, बिकॉज एक कल्चर डेवलप हुआ है यूनिवर्सिटीज़ का कि बस वो अपना ही एक साइड पे सेटअप है, मतलब डाकू डे है तो पता नहीं कौन कौन सा डे है, मतलब एक अपना कल्चर है। आप लोग वहाँ पे अपना एक सेटअप जो है उसको पॉजिटिव वे में भी इस चीज़ को आप एग्जिबिट कर सकते हैं। आप एक पॉजिटिव वे में आप इंडस्ट्रीज को बुला के कोई इवेंट कंडक्ट करवा सकते हैं, कोई आप सिस्टम जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें इंडस्ट्रीज को एटलीस्ट पता चले कि यहाँ पे कौन है, किस तरह से काम चल रहा है, और फिर वो छोटी छोटी एग्जांपल्स जो हैं, वो इनिशिएटिव्स जो हैं, आपको बड़ा इनिशिएटिव लेने के लिए हौसला देते हैं, और उस इनकरेजमेंट से फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो आपको जब एक कम्युनिटी में आप फैसिलिटी सक्सेसफुली प्रोवाइड कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर कम्युनिटीज खुद आपको अप्रोच करना शुरू कर देती हैं। तो इस तरह से म्यूनिसिपैलिटी के ऊपर भी लोड कम होता है, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू बिजनेस ओनर को भी फायदा होता है। फॉर एग्जांपल लाहौर में अगर आप देखें तो दो डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। एक स्ट्रीम है जो सिटी एरिया है, और एक स्ट्रीम है जो कैंटोनमेंट एरिया है। सिटी एरिया में गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है, कैंटोनमेंट एरिया में एक प्राइवेट बिजनेस होल्डर है जो इस चीज़ को ऑपरेट कर रहा है, और वो सारे का सारा सिस्टम जो है वो उसका गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो उसका सिस्टम ज़्यादा रिलायबल, सस्टेनेबल और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, और वो इन्वायरमेंटल ग्रेजुएट है, ठीक है। तो उसने ये सिस्टम पूरे कैंटोनमेंट को संभाला हुआ है, बहुत बड़ी एक विसिनिटी है लाहौर में वो। तो उससे वो जनरेट होने वाले वेस्ट को सेग्रीगेट भी करते हैं, रिसाइकल भी करते हैं, और कंपोस्ट भी बनाते हैं। और उसको देखते हुए आपके जो डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, नेस्ले है
पैकेजेस है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो उनके साथ, सर्फ एक्सेल है, ये सारी जो है कंपनीज हैं, ये सारी उनके साथ कोऑपरेट करती हैं, उनके साथ कांटेक्ट करती हैं और अपना रॉ मटेरियल या उनका जो वेस्ट मटेरियल है जो उनके काम का नहीं है वो उनको देती हैं रिसाइकलिंग के लिए। तो अब देखें बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनके पास बढ़ती गई कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कैंटोनमेंट से और अब बहुत सारे एरियाज में, बहुत सारे और सिटीज में उनको ऑफर्स आती हैं, बहुत सारे और सिटीज में उन्होंने इकोप्रेन्योर्स के साथ एक काम स्टार्ट किया कि वो लोगों को कहते हैं कि आप अपने एरिया में ये सर्विसेज प्रोवाइड करें, हम आपको कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ट्रेन करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या क्या होता है, किस तरह से होता है, आप अपने एरिया में अपनी पीआर को यूज़ करते हुए ये सारा सर्विस स्ट्रक्चर चलाएं और उसके बाद फिर हम आपका जो वेस्ट है उसको हम लेके जाएंगे और आपको हम पे करेंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं और एक अच्छा मॉडल जो है वो पब्लिक लेवल पे भी और प्राइवेट लेवल पे भी हम डेवलप कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को अगर हम ऑपरेट ना करें, इट वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू मैनेज सॉलिड वेस्ट, और इवन इंडिया इस बहुत ज़्यादा की जा रही है। और इसकी एग्जांपल्स आपको, उसकी एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि एक ऑलमोस्ट सिमिलर इनकम लेवल है और एजुकेशन लेवल है, तो वेस्ट की नेचर भी सिमिलर है, सीजनल वेरिएशंस भी सिमिलर हैं, तो इस वजह से हम ये प्रोजेक्शन ले सकते हैं कि अगर वहाँ पे ये चीज़ प्रैक्टिस की जा सकती है तो यहाँ पे भी की जा सकती है। यस सबात। सर जिस तरह अभी वो अनवर बात कर रहे थे उनकी और आपने उनको कंटिन्यू किया था कि प्राइवेसी का इशू होता है, तो सर हम उसको उसमें जैसे हमने लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि हमारे लाइक पब्लिक कॉर्पोरेशन, तो सर हम अगर उसमें पब्लिक कॉर्पोरेट करें तो उसमें ये सजेशन दी जा सकती है ना कि वो अपने लाइक जितना भी उनका वेस्ट है जो डेली बेसिस पे वो कलेक्ट करने आते हैं, जब भी वो कलेक्ट करने आते हैं लाइक दे कैन पुट इट इन अ बैग इन फ्रंट ऑफ देयर हाउसेज। तो अगर इस तरह वो कॉर्पोरेट करें तो ये तो मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। जी बिल्कुल बेटा, वो दैट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कलेक्शन, तो वो फंक्शनल एलिमेंट जब हम पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली वी वुड बी डिस्कसिंग दैट थिंग इज इंशाल्लाह। ओके ऑल सर। राइट, coming back to the actual content of the lecture, handling means the separation of waste into their different types so they can be dealt with within the most appropriate way. For example, separating producible waste for composting. Producible waste is the waste which is having moisture content in it. The benefits of segregation or the handling include reducing the volume of waste for final disposal and recovering usable materials for revenue generation opportunities. On-site storage means the temporary collection of waste at the household level. It is important that waste is stored in proper containers. These could be baskets, preferably made from locally available materials, plastic buckets, material containers. अब ये जो बात हम कर रहे हैं, this is inside the household. Larger containers or dustbins, especially for food waste, should be leak-proof, have tight lids, and be long-lasting. Then comes the size of the containers. Sufficient to hold, it must be sufficient to hold at least the amount of solid waste that is generated per day at the household level. अब देखें यहाँ पे generation rate आ जाता है, आपको generation rate का पता होगा तो उसके हिसाब से आप कंटेनर का साइज उस जगह पे फिक्स कर सकते हैं, even if it is your household. Institutions and businesses should consider having on-site storage facilities with greater capacity क्योंकि यहाँ पे fluctuations आ सकती हैं. The proper location of storage containers and the frequency and time of emptying are important factors to be considered for efficient on-site storage. Then जब आप इनको segregate करते हैं different materials को, तो उनके अंदर कुछ processes करने पड़ते हैं. Some waste will need some sort of on-site processing before the next steps. फॉर एग्जाम्पल कंटेनराइजेशन, आप कंटेनराइजेशन करते हैं, सेग्रीगेटेड मटेरियल को सेपरेट कंटेनर्स में स्टोर करते हैं, कॉम्पैक्ट करते हैं टू प्रोवाइड फर्दर रूम, ग्राइंड करते हैं टू प्रोवाइड होमोजीनियस मटेरियल. इसी तरह सॉर्ट आउट करते हैं, कलर कोडिंग के हिसाब से सॉर्ट आउट हो सकता है, मटेरियल वाइज सॉर्ट आउट हो सकता है, इवन प्लास्टिक की डिफरेंट ग्रेड्स हैं, कैटेगरीज हैं, उनके अगेंस्ट आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं. श्रेडिंग है, स्टोरेज है, बेलिंग है,
and similarly composting है, and pulverization है, which is the combustion of segregated material, and again incineration है at high temperatures, हम जो combust करते हैं अपने solid waste को. तो ये सारी ऑप्शंस जो है ये आपको इस तरह की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करनी पड़ सकती हैं जब आप अपना छोटा सा सिस्टम या अगर कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम आप इंस्टॉल करते हैं तो. फिर वेस्ट हैंडलिंग रेफर्स टू द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट बिफोर they are placed in a collection container, may also include handling the collection container to and from the collection point. सेपरेशन क्या होती है? इट इज़ द सोर्स रिकवरी. सोर्स क्या है जहाँ पे वेस्ट जनरेट हो रहा है, रिकवरी क्या है कि आप सेपरेट कर रहे हैं, उसमें से रिकवर कर लिया, आप फेंक के वापस उठा लिया उसको आपने. रिसाइकलिंग को लीड करती हैं ये सारी एक्टिविटीज़. एंड एल्यूमिनियम कैंस, पेपर, प्लास्टिक, ग्लास एक्सेट्रा, जो हमने डिफरेंट कंपोजिशंस पढ़ी थी अपने फिजिकल कंपोजिशन के सेक्शन में, तो ये सारी चीज़ें हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं अपने वेस्ट से. वेस्ट हैंडलिंग एंड सेपरेशन वेरीज सिग्निफिकेंटली एट डिफरेंट लेवल्स. फॉर एग्जांपल रेजिडेंशियल dwellings with low-rise dwellings which are having less than 4 stories, single family detached, सिंगल फैमिली अटैच्ड एंड मल्टी फैमिली डिवेलिंग्स हो सकती हैं, अपार्टमेंट्स हो सकते हैं. मीडियम राइज डिवेलिंग्स हो सकती हैं 4 to 7 स्टोरीज के साथ. हाई राइज डिवेलिंग्स हो सकती हैं 7 स्टोरीज एंड प्लस 7+. इसी तरह कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ है. तो आप देखें कि यहाँ पे हमारा जो कल्चर है वहाँ पे इतनी हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम इफ़ वी आर मैनेजिंग द सॉलिड वेस्ट इन कराची एंड लाहौर एंड अदर सिटीज़, तो फिर वहाँ पे आपको इस टाइप की जो बिल्डिंग्स हैं, इस टाइप की जो फैसिलिटीज़ हैं, इस टाइप की जो रेजिडेंशियल कम्युनिटीज़ हैं, उनके बारे में भी सोचना होगा कि वहाँ पे जो सॉलिड वेस्ट जनरेट होगा उसको हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, कैसे कलेक्ट करेंगे. तो ये सारी प्लानिंग जो है आपको ऑन ग्लोबल लेवल आपको ये सारी चीज़ें देखनी है, चाहे वो सीज़न हो, चाहे वो जनरेशन रेट हो, चाहे वो स्टोरेज हो, चाहे वो कलेक्शन हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, एंड इवन इफ इट इज़ द डिस्पोजल. वेस्ट अगर आपका है तो उसके लिए आपको क्या रिसोर्सेज चाहिए, आप किस तरह से उसको कलेक्ट करते हैं. या तो आप उसको कंबाइन कलेक्ट कर लेते हैं, या आप उसको मैनुअल सेग्रीगेशन कर लेते हैं, और सेग्रीगेटेड मटेरियल जो है दैट कैन बी सेपरेटेड आउट फ्रॉम द सिस्टम एंड दैट कैन बी सेंट टू द रिसाइकलिंग इंडस्ट्री. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. रिसाइकलिंग इंडस्ट्री वुड बी having the recyclable material from all the scavengers or all the हमारे लोकल टर्मिनोलॉजी है जो कबाड़िया जो होती हैं उनसे वो कलेक्ट करेंगे, एंड दे वुड बी लाइक फर्दर सॉर्टिंग आउट अकॉर्डिंग टू देयर ओन नीड. और उनका अपना स्टाफ जो है वो मैकेनाइज्ड होगा, वो ट्रेंड होता है, कैपेसिटी बिल्डिंग की हुई है. देखें यहाँ पे आप इस कन्वेयर बेल्ट को अगर आप ऑब्जर्व करें तो इट इज़ अ कन्वेयर बेल्ट जिसके ऊपर आप सेग्रीगेटेड वेस्ट को या इवन कमिंगल्ड वेस्ट को आप ऊपर डाल के इस बेल्ट को चलाते हैं. एंड इट इज़ एन एनर्जी ड्रिवन बेल्ट. और उसमें आप देखें हर ये जो ग्रीन कलर के पॉइंट्स हैं, ये ग्रीन कलर की जो साइड्स हैं, दीज आर दी कंटेनर्स जो हमने कंटेनराइजेशन पढ़ा है. तो इनके बीच में एक एम्प्लॉय के खड़े होने की जगह है, और हर एम्प्लॉय को आपने टास्क दे दिया कि आपने इस टाइप का मटेरियल जो है वो अपने कंटेनर में स्टोर करना है इस मूविंग बेल्ट के ऊपर से उठा के. तो इट इज़ अ वेरी मैकेनाइज्ड एंड ऑप्टिमाइज्ड सेग्रीगेशन पॉइंट, और यहाँ पे वो इंडस्ट्रियल नीड के मुताबिक वहाँ पे सेग्रीगेशन करते हैं. सिमिलरली आप ये बेलिंग जितनी भी है, आप जितना मटेरियल है उसको सारे को आप कलेक्ट करते हैं एंड यू प्रोवाइड टू द रेलिवेंट इंडस्ट्री, और वो उसको फिर फर्दर रिसाइकलिंग की तरफ लेके जाते हैं. अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको मिक्स प्लास्टिक वेस्ट की बेलिंग नज़र आ रही है, और इस मिक्स प्लास्टिक वेस्ट को इवन इंडस्ट्रियल नीड के मुताबिक आप ग्रीन कलर को सेपरेटली सेग्रीगेट कर सकते हैं, वाइट कलर को सेपरेटली कर सकते हैं, अदर कलर कोडिंग्स कैन बी सेग्रीगेटेड सेपरेटली. फिर ये आपके सिस्टम्स हैं जो हमने डिफरेंट सिस्टम्स पढ़े थे कि हमारे पास डिफरेंट सिनारियोज हैं जिसमें हम वेस्ट को कलेक्ट करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं टू दी डिस्पोजल साइट. तो उसमें डायरेक्टली हो सकता है, सेकेंडरी फेज़ हो सकती है, थर्ड फेज़ हो सकती है. रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को कहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, कहाँ पे नहीं किया जा रहा. तो आई वुड बी शेयरिंग दीज लेक्चर्स विद यू, और आप इसको जो है वो इन डेप्थ देख लीजिएगा. इसमें जस्ट इंडस्ट्रियल सेटअप को ऐड किया हुआ है कि यहाँ पे जनरेट हुआ है तो यहाँ पे डिस्पोज हुआ है, और उसके बीच में क्या क्या होता रहा. तो आई वुड बी शेयरिंग दीज लेक्चर्स विद यू. We need to complete the session as well.
How to handle in such scenarios? For example, you have the some type of demolition event जिसमें आपके सारा ये सिस्टम हो गया, तो अब इसको किस तरह से हैंडल करना है, इसके लिए भी आपके पास फैसिलिटीज होनी चाहिए। आजकल जैसे सीजन है मून से रेनी सीजन है, तो इस रेनी सीजन में आप वेस्ट को किस तरह से मैनेज करते हैं, कलेक्ट करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं कि आपका वेस्ट सेफ इनफ है स्टोरेज पॉइंट्स पे कि वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा इन सच कंडीशंस। तो ये आपने मेक श्योर करना है, इसको आपने जहन में रखना है जब प्लान कर रहे होते हैं किसी भी जगह पे। ये देखें यहाँ पे स्टोरेज को किस तरह से एक मतलब बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली वे में इन्होंने इस चीज़ को शो किया हुआ कि आप इस तरह से स्टोर करें। ये भी आपके साथ मैं टेबल शेयर कर दूंगा इन टर्म्स ऑफ वीडियो लेक्चर, कि आप इसमें आप देख सकते हैं कि रेजिडेंशियल एरिया जो है वहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ये टिपिकल इक्विपमेंट यूज्ड फॉर ऑन साइट हैंडलिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट बाय वेस्ट सोर्सेज। तो ये मीडियम राइज बिल्डिंग में आप क्या कर सकते हैं, हाई राइज बिल्डिंग में क्या होना चाहिए, कमर्शियल एरियाज में क्या होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एरियाज में क्या होना चाहिए। तो ये वो सारी फैसिलिटीज़ हैं, ये टूल्स हैं जो आपके वेस्ट को स्टोर करने के लिए या स्मॉलर लेवल पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए यूज़ होते हैं। अब फिर एक पब्लिक पार्टिसिपेशन है कि ओनर जो है उसको आप रियलाइज करवाएं कि ये आपका वेस्ट है एंड यू हैव टू मैनेज इट इफेक्टिवली, और आपने हमारे प्रोवाइडेड स्टोरेज पॉइंट पे आपने इसको लेके आना है। द ओनर, ऑपरेटर और ऑक्यूपेंट ऑफ एनी प्रीमिसेस, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेटिस्फैक्टरी एंड लीगल अरेंजमेंट फॉर द हैंडलिंग ऑफ द सॉलिड वेस्ट जनरेटेड और accumulated बाय देम ऑन देयर प्रॉपर्टीज। तो ये उनका राइट है कि वो उसको किस तरह से हैंडल करते हैं अपनी प्रॉपर्टी के अंदर। लो राइज डिवेलिंग्स, मैंने पहले बताया कि वेस्ट इज स्टोर्ड एट होम इन अ वैरायटी ऑफ कंटेनर्स, डिफरेंट कंटेनर्स हो सकते हैं लो राइज डिवेलिंग्स में। कंटेनर्स इक्विप्ड विद व्हील्स आर आल्सो यूज्ड फॉर मिक्स्ड वेस्ट। द टाइप ऑफ कंटेनर्स डिपेंड्स अपॉन वेदर सेपरेशन इज मैंडेटरी और नॉट। इन मैनी स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स वेस्ट सेपरेशन इज रेगुलेटेड, मैंडेटरी है, पॉलिसी लेवल पे ये चीज इंश्योर कर दी गई है कि जो नहीं करेगा उसको फाइन होगा। इट्स इफ सेपरेशन इज नॉट मैंडेटरी देन द मिक्स वेस्ट इज प्लेस्ड इन अ वैरायटी ऑफ कंटेनर्स। रेजिडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग द कंटेनर वेस्ट टू द कलेक्शन पॉइंट, जो म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से डिफाइंड है स्टोरेज पॉइंट या कलेक्शन पॉइंट। स्टोरेज पॉइंट भी कहते हैं, जब वेस्ट वहां पड़ा है तो दैट इज द स्टोरेज पॉइंट। जब म्यूनिसिपैलिटी वाली गाड़ी आ गई और वो कलेक्ट कर रही है तो इट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज द कलेक्शन पॉइंट। सो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स के एक ही पॉइंट के दो नाम है, depending upon the operation being conducted over there. If no separation at home, then recycling is done at the municipal recycling facility, MRF facilities हैं आपकी। लो राइज एंड मीडियम राइज अपार्टमेंट्स जो होते हैं, बेसमेंट स्टोरेज होती है उनमें बाय रेजिडेंट्स एंड मूविंग ऑफ द कंटेनर बाय मेंटेनेंस पर्सोनल। या तो रेजिडेंट्स खुद जाके बेसमेंट में जाके अपना वेस्ट ड्रॉप करके आते हैं, या फिर क्रू होता है जो डिपेंडिंग अपॉन द सर्विस प्रोवाइडर एंड डिपेंडिंग अपॉन द कम्युनिटी इनकम लेवल एट दैट कम्युनिटी। आउटडोर स्टोरेज भी हो सकती है जो हाई राइज मीडियम राइज बिल्डिंग्स हैं। लार्ज outdoor containers located in a special designated area that are emptied mechanically by the collection trucks. Waste could be separated or commingled or mixed. ये डिफरेंट टाइप के कंटेनर्स यूटिलाइज किए जा सकते हैं, ये लोकल मटेरियल के हैं और इंटरनेशनली आपको वो भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ मैं अभी इन अ वाइल। मेंटेनेंस पर्सोनल और porters pick up the waste at the apartment door and take the basement or service area. high rise apartments जो होते हैं वहाँ पे vessels on each floor, usually circular, usually bagged, are placed by the tenants in specially designed vertically with openings located at the each floor. आप अपनी हाई राइज बिल्डिंग के साथ एक वेसल जो है आउटसाइड दी बिल्डिंग जो है एक वेसल जो है इंस्टॉल कर लेते हैं और उसकी हर फ्लोर पे ओपनिंग दे देते हैं, और रेजिडेंट्स जो हैं उनको सिर्फ उस फ्लोर तक आना पड़ता है, अपने उस पॉइंट तक आना पड़ता है जहाँ पे उसकी ओपनिंग है, वहाँ पे वो वेस्ट को ड्रॉप करता है और वो वेस्ट जो है वो उस वेसल से होता हुआ नीचे बेसमेंट में कलेक्ट हो जाता है जाके एक कंटेनर में। और उसकी मेन एक्सेसरीज जो वेसल हैं उसकी क्या हो सकती हैं, हर फ्लोर पे इनटेक बैफल होगी,
इनटेक डोर होगा, लॉक्स होंगे, स्प्रिंकलर्स होंगे, डिसइंफेक्शन सिस्टम होगा, साउंड इंसुलेशंस होंगी, रूफ वेंट्स होंगी। ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो वहाँ पे उस चूँकि ये कंजेस्टेड होते हैं और टोटली क्लोज सेटअप होते हैं अपार्टमेंट्स, तो वहाँ पे फिर आपको स्मेल इश्यूज और इसी तरह डिजीज कॉजिंग एजेंट्स जो हैं वो वहाँ पे आ सकते हैं। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें वहाँ पे वेसल्स की होनी चाहिए। मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ, ये आउटसाइड दी बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग, ये वेसल है जैसे वो बताया हुआ था। तो इस वेसल को आप फर्दर आप देखें तो ये उससे भी ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग है, अलोंग विद दी कलेक्शन पॉइंट और दी ओपनिंग एट ईच फ्लोर। अब ये इसके साथ है तो हर फ्लोर पे इसकी जो है ओपनिंग है, और वो एट द एंड ऑफ द डे कहाँ पे आ रही है वेसल, इस कंटेनर में आ रही है। और ये कंटेनर एक पड़ा है और एक ये इसके पास सरप्लस क्वांटिटी के लिए पड़ा है कि एक फिल हो जाए तो दूसरे को वहाँ पे प्लेस कर दें, या मे बी देयर इज सम अदर बिल्डिंग अलोंग विद दिस कंटेनर, तो उसका वेस्ट इसमें आ रहा है। एनी हाउ वट एवर इज द प्लानिंग और वट एवर इज द अरेंजमेंट, तो ओवरऑल सिनारियो ये है कि हाई राइज बिल्डिंग्स में से भी आपने वेस्ट कलेक्ट करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर या म्यूनिसिपैलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उन्होंने फिर यहाँ पे इस चीज़ को इंश्योर करना है कि वो एक कॉमन पॉइंट पे सारा वेस्ट आ रहा है। इसी तरह से अगर हम जो मैंने ये बात की थी इसकी इंडिविजुअल फ्लोर के ऊपर ओपनिंग्स की, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह का सिस्टम है। एक तो ये इसका बॉटम है जो कंटेनर्स आपने नीचे प्लेस किया है स्टोरेज के लिए। I think we have lost the connection. It would be taking time to upload the lecture once again. Or should I open it directly? That would be working. Yes. All right. I'm sharing directly with you guys that I was thinking to complete this session with completing the storage component as well. Anyhow, this is the start point of, is it being shared with you? Can you hear me, please? Yes, sir. All right. The screen is being shared with you, na? Please respond if the screen is visible to you all. Yes, sir, it is visible. All right. There are various pictorial views to make you understand regarding the storage and collection facilities at different community levels. ये वो ओपनिंग है जो मैंने कहा था, डोर होना चाहिए, लॉक होना चाहिए, स्प्रिंकलर्स होने चाहिए, और यहाँ से जब वेस्ट को थ्रो करेंगे तो दैट वुड बी रीचिंग एट दिस कंटेनर सिस्टम। और अगर आप इसको टाइमली कलेक्ट नहीं करते तो इट वुड बी लाइक पाइलिंग अप इन दी वेसल, और उसमें मॉस्किटोज एंड फ्लाइज जो है उनकी ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। एंड इफ देयर आर नो डोर्स एट दी ओपनिंग्स एट ईच फ्लोर, तो वहाँ पे स्मेल के इश्यूज भी हो जाएंगे। तो इस वजह से इस सिस्टम को फर्दर
बेहतर करने के लिए हाई राइज बिल्डिंग्स में वो सारे प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और ये कंटेनर्स जो हैं वो उनको लेटर ऑन आपने ऑब्वियसली आपने एम्प्टी भी करना है। डिजाइनिंग ऑफ वेसल्स की किस टाइप की वेसल्स हो सकती हैं, ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ पे अगर आप बनाते हैं तो ये हर फ्लोर पे उसकी ओपनिंग कैसे होगी, उसको किस तरह से आप मैनुअली कंट्रोल करेंगे, डिजिटली कंट्रोल करेंगे, कंटेनर कितने होंगे, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगी, वहाँ से वो किस तरह से मूव करेंगे, किस तरह से लोड करेंगे और उसको किस तरह से एम्प्टी करेंगे। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करेंगे तो तभी आपका सिस्टम जो है वो सक्सेसफुली जो है ऑपरेटेड होगा। इसका डायमीटर 60 सेंटीमीटर तक हो सकता है ऑन एवरेज बेसिस। बल्क स्पेसिफिक वेट ऑफ वेस्ट जो है वो ये हैंडल कर सकता है। ऑल द डेली वेस्ट विल बी डिस्चार्ज विद इन अ 4 आवर पीरियड एंड बिटवीन 4.4 टू 0.9 के कैपिटा जो जनरेशन रेट है उसको आप फॉलो करेंगे। Underground pneumatic pressure or vacuum transport system are also used in conjunction with the individual apartment vessels to transport the waste to centralized processing facilities or vacuum transport at for example vacuum transport system at Disney। ये बहुत सारी जगहों पे हमारा जो सिस्टम है उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पे आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में इनोवेशन लेके आनी पड़ती है, उसमें आपको एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा करने पड़ते हैं और फिर उसके हिसाब से आप अपनी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको मैनेज कर लेते हैं। इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट सिस्टम्स हैं जिनमें आप वैक्यूम सिस्टम या न्यूमेटिक सिस्टम भी एक सिस्टम है जो आपको अलाउ करता है कि किस तरह से आपने अपने जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उसको आपने हाई एनर्जी ऑपरेटेड सिस्टम्स पे किस तरह से लेके आते हैं। I would be sharing a vacuum systems brief video with you, and later on we would be carrying the lecture along. Please share if it is visible to everybody. I am going to play this video. You can Google later on yourself as well for further examples. Is it visible, Sabahat? Yes, sir, it is. All right. Similarly, according to the storage point of views, there are many innovations in storage as well. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. And is it audible? No, sir. All right, you can later on, you can listen in the video. I will be sharing the video recording of the lecture with you guys.
एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि आपने देखा कि पूरी व्हीकल के साथ एक ही क्रू है, क्रू स्टाफ जो है वो एक ही है और वही सारा काम कर रहा है, ड्राइविंग भी वही कर रहा है और वेस्ट को ट्रांसफर भी वही कर रहा है। तो जो कॉस्ट आपकी मतलब बढ़ रही थी उसको किसी तरह से आपने ऑप्टिमाइज किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग। These are brief videos which I want to share with you guys so that you can get an idea of advanced waste management systems across the globe. These are aggregation points. यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा आइडिया ये भी मैं देता चलूँ कि यहाँ पे आप देखें कि इन्होंने इवन जो बिन्स हैं वो जो हम डिफरेंट बिन्स इंस्टॉल करने की बात करते हैं, इन्होंने वैक्यूम ऑपरेटेड बिन्स भी डिफरेंट इंस्टॉल किए हैं और उनका नीचे सारा सिस्टम भी अलग से है कि वो जो जितनी भी वैक्यूम से कलेक्ट होके जाएंगी वो अलग से सारी चीज़ें वो सॉर्ट आउट होंगी और हर एक का कलर कोड दिया हुआ है कि किस टाइप का मटेरियल जो है वो इस कलर कोड में आपने डालना है। सिमिलरली हर एक रेजिडेंट को कार्ड्स दिए हुए हैं कि वो वहाँ पे उस तरह से ऑपरेट करें। ये छोटे एक सिस्टम पे छोटे टाउन पे मॉडल ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को एडवांसमेंट की तरफ लाया जा सकता है। ऑल्दो वी आर नॉट एबल टू अप्लाई सच थिंग्स इन आवर सिस्टम्स, लेकिन ये छोटे टाउन्स या एक मॉडल के तौर पे इसको स्टडी किया जा सकता है और ग्लोबल लेवल पे वेस्ट मैनेजमेंट की जब बात करें तो फिर भी हम इस चीज़ को शेयर कर सकते हैं। और इवन कोई मिसयूज कर रहा है इन बिन्स का तो उसका भी आपको पता चल जाता है कि आपने उनको एक रजिस्ट्रेशन आईडी दी हुई है तो उसके अकॉर्डिंगली वो उसको ओपन करेंगे और वो ड्रॉप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस रजिस्ट्रेशन आईडी से जो है वेस्ट को मिसप्लेस किया गया है या मिक्स कर दिया गया है। ये अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स हैं, इन स्टोरेज टैंक में जो है वेस्ट वैक्यूम के थ्रू कलेक्ट होके आता है और ये इस सिस्टम से आते हैं और वहाँ से लेके उधर या ठीक है। और दिस इज आवर ये डिसइंफेक्शन के लिए आप इसको हॉट एयर के साथ इसको डिसइंफेक्ट भी करते हैं अपने सिस्टम को। ये सेग्रीगेशन के लिए डिफरेंट आपके पास बिन्स हैं, अकॉर्डिंगली आप उसमें अपना वेस्ट जो है वो थ्रो करते हैं और उससे जो है आप साइकिलेबल साइकिलेबल है और सिस्टम है वो भी डिटेक्ट करता है, उसमें सेंसर लगे हुए हैं तो जिस टाइप का वेस्ट जिस बिन से आ रहा है उसकी डिटेक्शन उसी टाइप के कंटेनर, and then that container would be like evacuated or uh, segregated. Similarly, we have another video of Sweden, I believe, that they have established a fantastic solid waste management system in Sweden. Sweden has one of the highest recycling rates on the planet, reprocessing some 96% of all the garbage that they produce. It has set a global example of how countries could potentially make money off their trash instead of dumping it in the ocean or burying it is mass landfills. ऑटोमेटेड वेस्ट कलेक्शन सेटअप्स हैं आपके, जो हम बात कर रहे थे हाउस होल्ड की कोऑपरेशन की, तो दे जस्ट हैव टू पुट देयर वेस्ट विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन देयर प्राइवेसी. They just have to put their waste outside their household and the vehicle will be collecting that waste at their designated time intervals. Waste is a resource. Instead of considering it our waste,
we must consider peace, and it is then energy as well. अगर हमने वेस्ट को मैनेज कर लिया तो हमारे सिटीज टाउन्स एंड हमारी जो फैसिलिटीज हैं रिक्रिएशनल फैसिलिटीज हैं दोज वुड बी क्लीन इनफ टू एंजॉय. वेस्ट की सिचुएशन आप देख सकते हैं क्लीनलीनेस की कि किस तरह से वो आपकी क्लीनलीनेस इंप्रूव हो जाती है अगर आप वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इंप्रूव कर देते हैं. अच्छा, आप लोगों की आज के दिन कोई और क्लास तो नहीं है? सर एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन अभी तक हमें इन्फॉर्म नहीं किया टीचर्स ने. अनवर, डू वी हैव एनी अदर क्लास? सर ही इज नॉट हियर, उनकी लाइट चली गई है बारिश वगैरह की वजह से. ओह अच्छा 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 अच्छा, चलें ठीक है. सर शायद सर बिलाल की है. सॉरी सर शायद सर बिलाल असफ की है. अच्छा, चलें. ऑनलाइन सिस्टम में तो फिर वो छुट्टी वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए. समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपकी क्लास होती है तो वी कैन नॉट मैनेज ड्यू टू सम ऑफिशियल कमिटमेंट्स. तो ये अच्छा कि हमें टाइम मिल गया और हम अपना जो थोड़ा बहुत गैप था उसको हम फुलफिल कर चुके हैं. एनी हाउ, जो लेक्चर है वो तो अभी मेरे ख्याल में काफ़ी चीज़ें जो हमारी वो रहती हैं. लेट मी चेक इफ वी कैन कंप्लीट द लेक्चर बाय. एक्सक्यूज मी सर. जी जी. सर हमारे 14 अगस्त पे लास्ट टाइम भी हमारा पेपर था, और सर मुझे ऐसा लग रहा है कि सर अगर हम लोग इन डेज पे भी अपनी क्लासेस वगैरह ये सब कुछ सारे काम प्रॉपरली करेंगे तो हम अपनी इन डेज की इम्पोर्टेंस को मिटिगेट नहीं कर देंगे. बेटा ये परमानेंट बेसिस पे नहीं है.
ये जस्ट ये थोड़ा सा पेंडेमिक में इस तरह के इश्यूज हैं, तो वंस थिंग्स गेट नॉर्मल तो आप ये डेज अपनी, अल्लाह ताला आपकी लंबी उम्र करे, आप इंजॉय करेंगे ये दिन आगे पे। आप इन्हीं दिनों को ज्यादा अच्छे तरह से मनाने के लिए ये अच्छा सा पढ़ रहे हैं ना? यस सर। अब ये भी तो देखें कि ऑलमोस्ट 16 to 17 पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो 23 मार्च ही मना रहे हैं सो के। जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो आप आज इसको इस कॉन्टेक्स्ट में ना पढ़ें कि आपने ग्रेड लेना है या आपने डिग्री करनी है या आपने पढ़ना है। आप इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें कि हम पाकिस्तान को क्लीन एंड ग्रीन बनाएंगे, हम पाकिस्तान को साफ सुथरा बनाएंगे। ठीक है? सो इट्स पाकिस्तान डे टुडे एंड वी आर डिस्कसिंग रिगार्डिंग मेकिंग पाकिस्तान मोर ब्यूटीफुल। यस सर। चलें, ये तो और गुड हो गया, अब तो सेलिब्रेशन हो गई ऑफिशियल। आई थिंक आई शुड स्टॉप द रिकॉर्डिंग। मैं दोनों रिकॉर्डिंग्स, आई हैव सेग्रीगेटेड द रिकॉर्डिंग्स इन